Student, this is the part 1 of Unit 3 of Standard 5th, Subject English, Festivals, the colors of human life. It means the colors which are spreading in our life give us happiness, or we can say that they can inculcate values and morals of life. So, let us start activity 1, pre-task. We all love festival, as we all, each and every human being which is present on our earth, they all love the festivals. Festivals break monotony and they add colors to our routine life. Okay, in this, what do you mean by the word monotony? मोनोटोनी यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे जो लाइफ में एक ही जो लाइफ है उसको हम रोज डेली जीते रहते हैं, वही जो चीज़ें हैं हम वो डेली करते रहते हैं, तो उससे जो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। लेकिन जब फेस्टिवल्स आते हैं तो जो फेस्टिवल्स हैं वो हमारी जो लाइफ की जो बोरिंगपन है उसे क्या करते हैं, दूर करते हैं और उनमें ऐड करते हैं कलर्स। Festivals are occasions to celebrate some natural phenomena। मीन स्टूडेंट, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हम एक ऑकेशंस के रूप में जो है वो मनाते हैं उनको, and to celebrate some natural phenomena like we can say that seasons, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional, or agriculture significance. In this word, the word significance mean importance, right? तो जो festivals हैं वो अलग अलग जो events कह सकते हैं, फिनोमिना मीन्स इवेंट्स, अलग अलग जो इवेंट है उनके हिसाब से हम जो हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। या तो वो सीजन्स के फॉर्म में होते हैं, हिस्टोरिकल फॉर्म में होते हैं, पॉलिटिकल वे में होते हैं और इन्वायरमेंटल वे में होते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ वे इन विच वी विल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स in our country. Various days of importance from local to international level are celebrated throughout the year. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेस्टिवल्स हैं वो हम अपने कंट्री में तो सेलिब्रेट करते ही हैं, बट कुछ ऐसे भी फेस्टिवल हैं जो हम इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड डॉक्टर डे। वर्ल्ड डॉक्टर डे कैन बी द डे which is celebrated for the doctors in our whole world, and this day is celebrated on 1st July. Next we can say 16th September World Ozone Day, right? 22 April we celebrate World Health Day. So these are some of the examples, or we can say some of the days which we are celebrating throughout the years on the world basis. Understood? Now come to the part A. Work in pair. Look at the following images and provide the information asked under each picture. Name of festival, day, day of celebration, type of festival, place of celebration and significance. First is given as an example, do the rest of the items. Students, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इस पिक्चर्स से रिलेटेड हमें बताना है कि जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल का नाम क्या है। ये जो फेस्टिवल है हम ये जो फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन मनाते हैं, ये कौन सा फेस्टिवल है, क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। द फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल एंड द सेकेंड वन इज रिलीजियस फेस्टिवल. If we talk about the national festival, then the festivals like Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, these are some of the festivals which are celebrated as a national. So, therefore, they are called national festival. Now, the second type of festival that we are celebrated is religious festival. In religious festivals, we can talk about the festivals that that we are celebrating like Holi, Diwali, Dashera, Christmas,
etc. So these are some of the examples of the festival that we celebrated as a religious festival. Okay, so look at this picture and now tell. So what this picture tells us about. So this picture tells us about the festival of Independence Day. Okay, and on which day we will celebrate Independence Day? On 15th of August. So type of festival, is this national festival or religious festival? Yes, of course, this is the national festival. Place of celebration all over India. In India, at all the states celebrate Independence Day. Significance. What is the importance of celebrating Independence Day? Because our India got freedom on 15th August 1947. Now let us move ahead. Now you have to look some of the pictures. Okay? And you have to tell that the name of the festival. So let's do it. Okay. Which festival come in your mind after seeing this picture? Yes, this is the festival of Dahi Handi. Okay, day of celebration, Janmashtami. Type of festival. Which type of festival is this? National or religious? So we can say that this is the religious festival. Place of celebration. Mostly this festival being celebrated in Mumbai or Pune and many parts of Maharashtra. Significance. What is the importance of the festival? Why we will celebrate Janmashtami? Because it is the celebration of the birth of Lord Krishna. Because इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के ही उत्साह में हम जो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बनाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनकी आपको इमेजेस दिखाई दे रही है। तो आपको इन जो फेस्टिवल्स हैं उनके जो नेम, उनका जो फेस्टिवल का जो नाम है, किस दिन मनाते हैं, क्या टाइप है, रिलीजियस है या फिर नेशनल है, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, इनको मोस्टली कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, why we will celebrate such type of festivals. So you have to mention all this thing in the blanks given below. Okay, I have already done one for you. Okay, and the remaining festivals question you have to do it by your own self. आपको अपने आप से जो है ये जो fill in the blanks है वो आपको करने हैं. Now come to the P part. Work in group and find out suitable expression of greeting based on the occasion. Respond in the blanks given in the following table. An example is given for you. सुनिए यहाँ पे occasions हैं. जब हम कोई भी हम कह सकते हैं ओकेशन हो, कोई ख़ास दिन होता है, तो जब हम अपने उस ख़ास दिन को बनाने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेशन आपको इसमें लिखने हैं. जैसे जब आपका किसी के फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आप क्या बोलते हो उसको, कैसे उसको आप एक्सप्रेस करते हो. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, है ना. तो आपको जो हैप्पी बर्थडे यानी कि बर्थडे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे, तो इस तरीके से जो है आप उसको ग्रीट करते हो. इसी तरीके से जब आप वेडिंग सेलिब्रेशन या फिर मैरिज एनिवर्सरी में जाते हो तो आप किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, आप क्या कहोगे, ठीक है, कैसे जो है दूसरे जो सामने वाला जो इंसान है उसको इम्प्रेस करोगे अपने वर्ड से. तो वो जो एक्सप्रेशन जो वर्ड हैं इम्प्रेसिव जो आप जो वर्ड बोलोगे उनको कांग्रेट्स करने के लिए वो आपको यहाँ पे जो है मेंशन करने हैं. जैसे कि अगर आपके अच्छे रिजल्ट आते हैं, गुड रिजल्ट इन एग्जाम, तो आप कैसे अपने जो फीलिंग है या फिर अपनी जो फीलिंग है आपके फ्रेंड के प्रति जिसके भी अच्छे रिजल्ट आया तो आप उसको कैसे बोलोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. अगर आप प्रमोशन आता है किसी का तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, अगेन यू से कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड लक फॉर द फ्यूचर, है ना, कि फ्यूचर के लिए आपको गुड लक, बहुत सारी आपको हम बोलते हैं आपको जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं. मदर्स डे,
तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे हैप्पी मदर्स डे, राइट? So such type of expressions regarding occasions, you have to mention your expression in the box given below. Now next, activity number 3. Activity number 2. Part A. The present generation, especially the young, makes more use of cell phones and computer. Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. Here two friends and Bharat and Jamshed exchange letters describing how they celebrate their New Year day. Read and enjoy the following personal letters. तो स्टूडेंट्स, आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसे कि आप लोग, हम जैसे लोग, जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो एक्चुअली आजकल हम लोग फ़ोन्स वगैरह में इतनी जो है अपनी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम फ़ोन्स के ज़रिए ही अपनी जो है काम कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो पहले के ज़माने में जो लोग लेटर्स वगैरह लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आज के ज़माने में जो लोग हैं वो टोटली भूल गए हैं, राइट? एवरीबडी हैव forgotten that how we write letters to our friend. ओके, तो यहाँ पे कुछ है, टू पेन फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, भरत और जमशेद, जिनका नाम क्या है, भरत एंड जमशेद, जो कि एक्सचेंज करते हैं लेटर्स, आपस में लेटर्स को एक्सचेंज करते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ पे कैसे जो लोग हैं, कैसे जो लोग हैं और कैसे जो वो लोग हैं आपस में, वो लोग कैसे जो न्यू ईयर डे हैं वो बनाते हैं। ओके, so let us see. फर्स्ट वन इज फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। ठीक है, तो फेस्टिवल्स क्या होते हैं, एक ऐसा समय होता है जहाँ पे हम सब लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं आपस में। तो सबसे पहले देखिए एड्रेस आएगा। एड्रेस क्या दिया हुआ है, 16 पाशी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, राइट? सो दिस इज द एड्रेस। ये एड्रेस किसका है बच्चों, जो लेटर लिख रहा है, कौन लेटर लिख रहा है, जमशेद। तो जमशेद सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा क्योंकि वो लेटर लिख रहा है, और जिसको लेटर देना है, ठीक है, लेटर किसको भेज रहा है, वो भरत को। तो जो भरत का जो एड्रेस है, रिसीविंग, जो रिसीव करेगा उसका जो एड्रेस है, वो एक्चुअली स्टूडेंट एनवेलप जो होता है उसके ऊपर जो है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एड्रेस मेंशन किया है, 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, एंड द डेट कि किस दिन जो है वो लेटर लिखा गया था, 15 नवंबर 2007 में। डियर भरत, क्योंकि लेटर भरत को लिखा जा रहा है इसलिए जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, डियर भरत। नाउ लेट अस रीड द लेटर। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैंने तुम्हें बहुत समय से जो है सुना नहीं है। हर्ड यानी कि सुनना, सुना नहीं है। आई होप यू आर फाइन, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। 2 months back you had asked me how we celebrated our new year. तुमने मुझे 2 महीने पहले पूछा था कि हमारे यहाँ पे जो पीपल हैं, जो हम लोग हैं, वो न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बट आई वॉज बिजी विद माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विद नवरजो और पतेती। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, जब आपने जो लेटर मुझे लिखा था 2 महीने पहले और पूछा था कि हम लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो उस वक्त मैं आपके लेटर का रिप्लाई नहीं दे सका क्योंकि मैं बिजी था, क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे थे। और सेकेंड चीज़ क्या थी कि हम लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, पतेती, नवरोज जिसे हम कहते हैं, अवर पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो ये जो फेस्टिवल है ये हम न्यू ईयर्स के जो न्यू ईयर बनाने के लिए जो है हम लोग इस फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी, जो हम लोग जो पारसी लोग हैं वो स्मॉल कम्युनिटी हैं। अच्छा,
What do you mean by the community? Community means a group of people, right? तो हम पारसी लोगों की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है. वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात. हम लोग कहाँ से आए हैं, ईरान से. तो कहाँ से आए थे ये लोग, जमशेद और उनका जो परिवार है और उनकी जो हम कह सकते हैं कम्युनिटी है वो कहाँ से आई थी, ईरान से. और कहाँ पे सेटल हो गई, यहाँ पे कहाँ पे रह रही है, गुजरात में. वी वर्शिप फायर एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अगियारी फायर टेम्पल. तो यानी कि स्टूडेंट्स, जो पारसी लोग होते हैं वो एक्चुअली किसको वर्शिप करते हैं, वर्शिप का मतलब पूजा, किसकी पूजा करते हैं, फायर, आग की पूजा करते हैं. और इसी वजह से जो उनका जो टेम्पल है, मंदिर है, उसको अगियारी के नाम से भी जाना जाता है. और वी कैन से फायर टेम्पल. वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू द सेक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर. हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र अग्नि में जो है हम लोग कौन सी लकड़ियाँ जलाते हैं, सैंडलवुड स्टिक्स एंड रिसाइट प्रेयर. और उसके बाद जो है हम लोग प्रेयर्स वगैरह गाते हैं. मेन्स एंड चिल्ड्रंस कवर देयर हेड विथ स्मॉल कैप्स एंड वुमेन कवर देयर हेड्स विथ साड़ी. जब हम ये जो प्रेयर, जब हम प्रेयर गाते हैं उस वक्त जो मैन और चिल्ड्रन, जो बड़े जो लोग हैं, जो हम कह सकते हैं जेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो अपने सर पे क्या बांध लेते हैं, टोपी. और जो वुमेन है वो अपने सर को अपने कह सकते हैं साड़ी से वो अपने सर को ढक लेती हैं. वी ऑल ग्रीट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर. और हम एक दूसरे, और उसके बाद हम सब एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते हैं कि आपको साल की मुबारकबाद हो. ठीक है, तो इस वे में वो लोग लोगों के साथ क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए. On Pateti, everyone wakes up early, gets ready and wears new clothes. तो जिस दिन पतेती का फेस्टिवल होता है उस दिन सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं. We decorate our houses and steps at the entrance with chalk and colorful powder in different shapes, just like rangoli. फिर वो कहते हैं कि हम लोग अपने जो घर हैं और घर के आगे का जो हम कहते हैं स्टेप्स यानी कि घर के आगे की जो हम कह सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, उनको हम बहुत ही सुंदर तरीके से जो हैं वो कलर पाउडर से कह सकते हैं. कलर पाउडर आपने देखा होगा, जैसे कि हम होली में जैसे हम रंगोली बनाते हैं, तो जैसे हम एक कलर जो हमें मिलते हैं होली बनाने के लिए, उसी तरीके से वो लोग कलर्स और चॉक्स का यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए. और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं उनसे वो लोग बनाते हैं एकदम रंगोली की तरह. एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड. और अपने घर को वो फ्लावर से और गार्लैंड से जो है उसको सजाते हैं. गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला. ऑन दिस डे स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड. इस दिन क्या होता है, अच्छे अच्छे बहुत ही स्पेशल डिशेज जो हैं वो बनती हैं. पारसी फूड इज वेरी डिलीशियस. और जो इस दिन जो फूड बनता है, पारसी का जो फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी यानी कि डिलीशियस होता है. वे प्रिपेयर रावा फ्रॉम सूजी. हम लोग रावा बनाते हैं सूजी से. तो रावा इज अ नेम ऑफ एन डिश. ओके. मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेज विथ फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन्स. और फिर हम क्या करते हैं कि जो रावा है वो हम सूजी से बनाते हैं, उसमें हम दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं. और फिर कह सकते हैं कि जो रावा है वो एक स्वीट डिश है यानी कि मीठी डिश है. डेकोरेट अ वैरायटी ऑफ डिश विद. और फिर जितनी भी जो डिशेज हम बनाते हैं उनको हम डेकोरेट करते हैं आलमंड से और रेजिन से, बादाम से और रेजिन से. We visit each other's house and give gifts and food to poor Parsi families. और फिर जो है हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और खाना खिलाते हैं. जो लोग गरीब होते हैं, पारसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं लेकिन गरीब होते हैं, उन लोगों को हम जाके फिर खाना खिलाते हैं. फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विद अदर्स. बहुत ही छोटी उम्र से जो है हम जो पारसी लोग हैं
वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटी उम्र से शेयरिंग की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि बांटना चाहिए, हमें हर एक चीज़ जो है वो शेयर करके ही लेनी चाहिए। मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विद ईच अदर, और जो मैन है जो वुमेन है वो आपस में जो है घुल मिल जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन आसाम। और अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम जो है तुम्हारा जो फेस्टिवल है आसाम में वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो। आई होप यू विल रिप्लाई सून, और मुझे लगता है आप मेरे लेटर का जल्दी ही रिप्लाई दोगे। विद लव, ढेर सारा प्यार, जमशेद। ओके, अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। जो पेन फ्रेंड क्या होते हैं बच्चों? पर्सन विद whom वन बिल्ड्स अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर। पेन फ्रेंड मतलब वो फ्रेंड्स जो आपस में अपने फ्रेंडशिप को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? लेटर्स का। शेयरड यानी कि होली यानी कि अभी मैंने आपको बताया पवित्र। कोई भी चीज़ जब हम पवित्र अग्नि की बात करते हैं, फिर कोई भी पवित्र चीज़ की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं शेयरड। नाउ अब जो है, जो हमने कहा कि जमशेद ने लेटर लिखा था भारत को कि कैसे वो लोग अपने यहाँ पे पतेती का सेलिब्रेशन करते हैं, और उसने ये भी बोला था कि तुम मेरे लेटर का जल्दी रिप्लाई करोगे कि क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे अपने आसाम में जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब जो है भरत जो है वो जमशेद के जो लेटर है उसका रिप्लाई देता है, और सबसे पहले जैसे मैंने बताया एड्रेस आएगा। एड्रेस किसका आएगा? जो लिख रहा है लेटर। तो अभी लेटर कौन लिख रहा है? भरत। तो 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम, और ये जो डेट कौन सी डेट को लिखा था? 10th दिसंबर 2007। डियर जमशेद क्यों? क्योंकि लेटर किसको लिखा जा रहा है? जमशेद को। Thank you for your letter. I was also busy with my school test. I was very happy to read about your Navroz celebration. तो अब जो है जमशेद वो सबसे पहले क्या लिखता है? थैंक यू फॉर योर लेटर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे लेटर लिखा, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि मेरे भी क्या चल रहे थे? टेस्ट चल रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपके यहाँ पे जो नवरोज का जो सेलिब्रेशन है और पतेती का जो सेलिब्रेशन है वो कैसे किया जाता है। यू नो असम इज़ अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। आप जैसे कि आप जानते हो कि जो आसाम है, आसाम इज़ द नेम ऑफ ए स्टेट, राइट। तो जो आसाम है वो एक बहुत ही छोटा स्टेट है ईस्ट इंडिया में, ठीक है। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो आसाम है वो सबसे जो है छोटा स्टेट है। आवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू। हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है बिहू। देयर आर 3 बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू, राइट। So these are the 3 bihus which are celebrated in Assam, connected with spring, winter and autumn। और ये जो बिहू जो हमने बिहू को 3 फेस्टिवल्स में जो है नाम में डिवाइड किया है, बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू एंड काती बिहू। तो आपको बताना है कि जो बोहाग जो बिहू होता है वो एक्चुअली स्टूडेंट स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। जब स्प्रिंग सीजन यहाँ पे यानी कि जब जो पेड़ हैं उनमें नई नई जब पत्तियाँ आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। और जो माघ बिहू है, माघ बिहू बच्चों मोस्टली विंटर में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ठंडी के वक्त। अब अगर हम बात करें काती बिहू की, तो काती बिहू जो है वो ऑटम सीजन में मनाया जाता है। ऑटम यानी कि पतझड़। बट बोहाग बिहू इज अवर मेजर फेस्टिवल। लेकिन हम इन तीनों में बात करें तो जो बोहाग बिहू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑल इन वन। ये जो फेस्टिवल है ये हम इसलिए खुशी के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस जो सीजन में क्या होता है
कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर है, यानी कि कह सकते हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, राइट। पेड़ पौधों में अच्छे अच्छे पत्तियाँ लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं, तो इसलिए जो बोहाग बिहू है उसे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मानते हैं। आसाम बिकम्स रिच एंड लश इन स्प्रिंग। जो आसाम है वो रिच यानी कि अमीर बन जाता है अगर बात करें स्प्रिंग सीजन में। एंड लश, लश यानी कि हरा भरा। Trees and flowers bloom and their fragrance and bird songs fill the air. जो स्प्रिंग सीजन्स में क्या होता है, जो ट्रीज हैं, जो फ्लावर हैं, वो ब्लूम करते हैं। ब्लूम यानी कि खिलते हैं। एंड देयर फ्रेगनेंस, जब वो खिलते हैं, जब वो पनपते हैं, जो उनकी जो फ्लावर्स हैं, उनकी जो लीव्स हैं, जब वो फिर से आना शुरू करती हैं, तो उनकी जो खुशबू होती है वो अलग ही खुशबू होती है। एंड बर्ड सॉन्ग फील द एयर, और जब जो बर्ड्स हैं जब वो आवाज़ निकालते हैं तो ऐसा लग रहा है वो एक गाना गा रहे हैं जो कि हवा में जो है वो फिलअप हो रहा है। पीपल ऑल्सो सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्फ। और इस सीजन में जो पीपल हैं वो भी गाना गाते हैं, डांस करते हैं, गेम खेलते हैं और पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करते हैं। दैट इज़ वाई द बोहाग बिहू इज़ ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू। और इसी कारण से जो बोहाग बिहू है उसको हम रंगोली बिहू भी कहते हैं। रंगोली बिहू मीन्स बिहू ऑफ मैरीमेंट। मैरीमेंट यानी कि खुशी, राइट, एक खुशी का प्रतीक। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द असमी कैलेंडर एंड एडवेंट ऑफ गॉड। और जो बोहाग है वो फर्स्ट मंथ होता है, पहला महीना होता है असम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, ओके। और ऐसा माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन में है जो एडवेंट ऑफ गॉड यानी कि गॉड का क्या है, भगवान का भी आगमन होता है। वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स, वी ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं, एल्डर जो हमके जो बड़े लोग हैं उनके जो है हम ब्लेसिंग लेते हैं और एक दूसरे को जो है वो गिफ्ट देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक कनीजूस। कनीजूस जो है वो गेम खेला जाता है जो कि एग फाइटिंग होता है, राइट। इसमें जो फाइटिंग होती है वो किसके साथ होती है, एग। धोप, धोप है एक बॉल गेम, राइट। एंड हाउ, अ फॉर्म ऑफ कबड्डी। तो हाउ इज द, वी कैन से इट इज द गेम like kabaddi. Bihu songs and dances are as special as Bihu food specialists like chira. हम कह सकते हैं जो बिहू के जो गाने होते हैं, जो डांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, एक स्पेशल खाने की तरह। लाइक चीरा, फ्लैटेंड राइस, पीठा, राइस रेक, केक्स एंड लाडू, स्वीट बॉल्स। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे। और हम इस दिन तुलसी की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वी ऑल्सो इंजॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू इंजॉय नवरोज। यू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर एंड सेलिब्रेट बिहू विद अस। प्लीज़ गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स। अब जो है कह सकते हैं कि जो भरत है वो कहता है कि हम जो है ये फेस्टिवल इंजॉय करते हैं जैसे कि आप लोग जो नवरोज पतेती इंजॉय करते हो वैसे ही हम जो है बिहू का फेस्टिवल इंजॉय करते हैं। डू कम गुवाहाटी। और फिर वो बोलता है आप गुवाहाटी आना अगले साल और हम साथ में क्या करेंगे, बिहू का जो फेस्टिवल है वो साथ में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज़ गिव माई प्रणाम। आप मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को जो है मेरी तरफ से प्रणाम या फिर नमस्ते कहना। योर लविंग फ्रेंड भरत, तुम्हारा प्यारा दोस्त भरत। कीवर्ड देखिए, लश। लश मीन्स थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। ब्लूम, ब्लूम यानी कि फ्लावरिंग जो आती है ना, अभी मैंने बोला पनपती हैं, उन्हें कहते हैं ब्लूम। एडवेंट यानी कि अराइवल, आना, ओके। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो अभी हमने जो पूरी ये जो स्टोरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये बच्चों आपको क्वेश्चंस जो है ये आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं, ओके। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, 2 facts 1 fiction. The teacher divides the students in group of 4 in each.
For dividing the class, the teacher can use roll number 1 to 4 and succeeding numbers in each 4, or use chit or randomly distribute them in groups. Follow the sequence of the activity given below. So this is the, we can say this is the activity, class based activity. इसमें हमें क्या करना है, जो टीचर है उसको, जो बच्चों को है उसको 4 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करना है। जब टीचर जो है वो रोल नंबर के हिसाब से इन्हें डिवाइड कर सकती है, या फिर एक और तरीका है चिट से भी जो है वो उनको रैंडमली यानी कि किसी को नहीं पता किसका नाम आएगा, तो चिट उठाइए, उसके हिसाब से भी बच्चों को क्या कर सकती है, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो। स्टेप 1, ऑल ग्रुप मेंबर्स थिंक ऑफ 2 थिंग्स about themselves that are true facts and one that is not the fiction. Here, as per the subject matter of the lesson, tasks can be carried out. Example, students think of their own festivals, religions, community and prepare facts and fiction. यानी स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों, आपने देखा होगा जो कोई भी जो मेंबर है या फिर कोई भी जो इंसान है, जब भी वो कुछ बोलता है तो उसमें से काफ़ी सारी बातें जो हैं वो फैक्ट यानी कि सच्चाई होती है, सच्ची होती हैं, और काफ़ी ऐसी भी होती हैं जो नॉन फिक्शन होती है। नॉन फिक्शन यानी कि काल्पनिक होती हैं, ठीक है, जो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो किससे रिलेटेड होगा, फेस्टिवल, रिलीजन, कम्युनिटी, राइट। इस चीज़ से जो है आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। या तो आप फेस्टिवल पे करिए, रिलीजन पे करिए, या फिर कम्युनिटी में करिए, और फिर आपको करने के बाद बताना है कि जो फ्रेंड है आपका वो क्या वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। स्टेप 2, once at a time each student tells groupmate the 3 self-descriptive statements without saying which is fiction and which are fact। और सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, उसको कोई भी तीन जो है द 3 सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स विदाउट सेइंग, तो आपको जो है बच्चे को वो दे देना है आपके फ्रेंड सर्कल में, और फिर आपको बताना है कि उसको बताना है कि कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो फिक्शन है और कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो फिक्शन नहीं है, वी कैन से नॉन फिक्शन है, ठीक है। स्टेप 3 देखिए, ग्रुप में आज क्वेश्चन टू ट्राई टू फिगर आउट विच स्टेटमेंट इज फिक्शन। तो जो ग्रुप्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फिक्शन है यानी कि ट्रुथ है। वेयर इज केरला सिचुएटेड, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, केरला कहाँ पर है। सेकंड देखिए, विच इज़ द मेजर फेस्टिवल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है। डू दे फ्लाई काइट्स, क्या वो फ्लाई करते हैं काइट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये फिक्शन नहीं है, ये हम कह सकते हैं नॉन फिक्शन है, काल्पनिक है, क्योंकि ये समझ में आता है कि वो केरला में सिचुएटेड है। बट यहाँ पे लिखा है डू दे फ्लाई काइट्स, क्या वो काइट्स उड़ा सकते हैं, तो ऑफकोर्स नॉट, राइट, क्योंकि उनका तो मेन जो फेस्टिवल होता है वो होता है ओणम, ना कि कह सकते हैं ना कि फ्लाई काइट्स और उत्तरायण। स्टेप 4, ग्रुप मेट्स वर्क टुगेदर टू गेस विच स्टेटमेंट इज फिक्शियस एंड गिव रीजन फॉर द गेसेस। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में काम करना है, गेस करना है कि किसकी जो स्टेटमेंट है वो फिक्टिशियस है यानी कि सच्ची है, और क्या रीजन है उसके पीछे। ग्रुप मेट्स शेयर विद द क्लास समथिंग इंटरेस्टिंग दे लर्न अबाउट ईच ऑफ देयर ग्रुप मेंबर्स। तो जो ग्रुप मेट्स हैं यानी कि जो बच्चे काम कर रहे हैं ग्रुप के बतौर पे, उनको ये डिसाइड करना है कि कौन सा अभी तक क्लास समथिंग इंटरेस्टिंग दे लर्न अबाउट, तो उनको देखना है कि क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें हैं उन्हें पढ़ता हो अबाउट ईच ऑफ देयर ग्रुप मेंबर, हर एक ग्रुप मेंबर से रिलेटेड। Okay, so students, in this part we will discuss this much only,
and the remaining activities we will see in the next video. Okay, thank you.